the parallel interconnection network. And I told you that parallel interconnection networks can be of in two kinds: static, in which the links are permanently made between the nodes, parallel nodes of processors, and because they are permanently connected, one has to make a choice that in which arrangement or topology they need to be connected. Another is the dynamic, in which switches, bit and links are reconfigured to make paths at different times. So we started with the static interconnection networks, and we said in the static interconnection networks there are a variety of topologies which are listed here. Completely connected, star, linear array and ring, 2D or 3D mesh and torus, and then tree, hypercube and KD mesh. Out of these static interconnection network topologies, we said, okay, we will compare them in their relative performance on 3 parameters. So we defined first the parameters on which we will base our performance of these topologies, and they were here. These were the 3 evaluation parameters for comparing static interconnection networks. This is the degree, diameter, and link cost. The degree shows the level of connectivity of our network, that how many links are connected to a node. A better connectivity will be better for communication point of view also. So that is the degree. Now the question was, in some networks, some nodes have more connections and some more nodes have less connection. In that case, we will take the best case of maximum connection. So degree is, in any network, maximum number of links at any node. Diameter, if we take any pair of nodes in the network and measure the path, shortest path, then the worst case of distance between any pair of nodes, which means farthest nodes का जो distance होगा वो diameter कहलाएगा. इससे ये पता चलेगा कि worst case of communication delay इस नेटवर्क का क्या हो सकता है. यानी ये वो दो नोड्स हैं जो सबसे दूर हैं, और अगर हम कहें वर्स्ट केस ऑफ कम्युनिकेशन डिले इसका, तो हमें ये डायमीटर से इसका अंदाजा होगा. लिंक कॉस्ट एक किस्म की नेटवर्क की कॉस्ट को शो करती है कि हाउ मेनी लिंक्स आर देयर इन नंबर. द मोर आर द लिंक्स, इट मे प्रोवाइड बेटर कनेक्टिविटी एट टाइम, बट इट विल आल्सो कॉस्ट मोर. सो जब भी आप बेहतर नेटवर्क बना रहे हैं और उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आपको कॉस्ट का भी ख्याल रखना है. जैसा कि हमने बाद में देखा कि देयर आर सम नेटवर्क्स विच आर वेरी performance wise good but very costly, and we don't choose them in all situations. ये हमने परफॉर्मेंस के देखा. जब ये तय कर चुके तो फिर हमने इन टोपोलॉजीज के बारे में जो कि यही पैरामीटर्स पे इनको कंपेयर किया. हमने कहा कि वी विल अस्यूम कि फॉर ऑल दीज टोपोलॉजीज वी हैव ए पैरेलल सिस्टम ऑफ पी नोड्स, स्मॉल पी, ताकि एक ही म्यार पे हम इन सब को चेक कर सकें परफॉर्मेंस में इन पैरामीटर्स पे. और उसमें हमने शुरू किया कंप्लीटली कनेक्टेड, स्टार, लीनियर अरे,
and ring, and then we went to 2D and 3D mesh and torus. तो ये हमने देखे, ये completely connected वाले को देखा जिसमें हर नोड हर दूसरे नोड से कनेक्टेड था. इसका डिग्री कि एक नोड कितने दूसरे एक हर नोड पे कितने लिंक्स हैं. तो अगर ये p नोड सिस्टम है तो हर नोड पे p-1 लिंक्स हैं, तो डिग्री p-1 है. Distance between any two nodes in this case is 1. Very good situation, very fast. So diameter is 1. लेकिन link cost in this case is very high. Each node is connected to p-1 nodes. So p okay. All right. So starting with the completely connected, in which degree of each node is p-1. Distance between any pair of nodes is 1. Link cost, each node is connected to p-1 links and there are p nodes. So p into p-1 links is the link cost because each link is shared twice divided by 2. So this is the link cost. In a star topology, the diameter, the distance between any two nodes, worst case is this nodes across. These nodes provide the distance option. It is a distance of 2. If we measure a distance from the center node to end node, distance is 1, but the distance between end nodes is 2, so we will take 2 as the case of diameter. The degree link with any node, all the other nodes have a link connectivity of 1. However, this node has a connectivity of p-1. So as we take the maximum case, the degree is p-1. Link cost, how many links are there? Very easy. The center node has one link with each other node, and that is the total number of links. So p-1 links. So link cost is p-1. That is for the star. Then we looked at the linear array. Linear array is nothing but connecting the processors. Just like a linear array, there is a one connection. Each node has two neighbors, one neighbor east and west, or right and left. So you connect all the nodes by putting one link in between. Of course, n nodes are open. This is a linear array. In this case, the degree connectivity of each node is 2. Each maximum case is of 2. Of course, n nodes have one connectivity, so degree is 2. The diameter, distance between the n nodes, if they are p nodes, the distance between them will be p-1. So worst case of diameter, worst case, farthest nodes are these n nodes. So diameter, distance between these n nodes is p-1. That's diameter. Link cost, if there are p nodes, there are p-1 links. So that's the link cost. Fine. Same array when G. Question? Okay. Same array when connected at the ends,
becomes a ring. And once it is ring and we want to find the same parameters, we see the degree will be same. Each node is connected to two nodes. Rather, in this case, even n nodes are connected to two nodes. This node has this neighbor and this neighbor, which was not in this case. But anyway, the best case and regular case both are 2. So degree is 2. Diameter is far distance between the farthest nodes. Interestingly, these two nodes, यहाँ हमने ये जो एंड के नोड्स थे इनको फारदेस्ट नोड लेकर और डायमीटर p-1 कहा था. इस केस में एंड नोड्स आर नॉट फारदेस्ट नोड्स. हम देखेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिविटी दे मे बी द क्लोजेस्ट, ये एडजेसेंट बन गए. तो हम इन नोड्स से डायमीटर कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो हमने बहुत सारे अटेम्प्ट्स की और फिर हमें रियलाइज हुआ क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी दोनों एंड से हो जाती है, तो अगर हम मिडिल का नोड लेंगे उस केस में वर्स्ट केस डिस्टेंस का मिल सकता है. मिडिल के नोड से इस एंड के नोड का और इस एंड के नोड का डिस्टेंस तकरीबन हाफ होगा. तो दैट इज द बेस्ट वी कैन हैव इन दिस केस. तो डायमीटर इज p/2. अब p/2 में एक साइड से और दूसरी साइड से समटाइम्स डिस्टेंस में थोड़ा एक स्टेप का फर्क हो सकता है. ये अगर ये डिवाइड करें इनकी तादाद को तो आपका आंसर एक तरफ से कम आएगा, एक तरफ से ज्यादा है. तो इसलिए p/2 का फ्लोर वैल्यू रिंग के केस में ये है. लिंक कॉस्ट जो है वो इस केस में यहाँ तो एक p के दरमियान p-1 लिंक्स थे, इसमें एक और लिंक ये वाला भी ऐड हो गया, तो फिर ये p लिंक्स इस केस में. जब हमने ये बात देखी इन कॉस्ट की तो हमने कहा अच्छा अब हम यही चीज अरे और रिंग वाली चीज को 2 डायमेंशन में ले जाएं. यानी अगर ये अरे मल्टीपल अरेज बना दें तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी. ऐसे ही हमारा अरे और मैट्रिक्स का डेटा स्ट्रक्चर भी होता है और ऐसे ही ये डायग्राम में होगा. और अगर हम रिंग्स को मल्टीपल डायमेंशन में 2 डायमेंशन में ले जाएं उसका नाम वहां फिर टॉरस हो जाता है. तो ये फिर एक किस्म का हमारा मैश अरे. लीनियर अरे को मल्टीपल लीनियर अरे हॉरिजेंटली और वर्टिकली कनेक्ट कर दें, 2 डायमेंशन में अगर लीनियर अरेज को जोड़ दें तो ये मैश बन जाएगा, 2D मैश. और इसी मैश को जिस तरह लीनियर अरे में एंड पॉइंट्स को आप रैप अराउंड कर रहे थे तो रिंग बना दिया था हमने, उसको रिंग कहा था. इसी तरह अगर इस मैश के एंड नोड्स को हॉरिजेंटली भी रैप अराउंड कर लें और वर्टिकली भी रैप अराउंड कर लें तो यही मैश को हम 2D टॉरस कह देते हैं. तो ये 2D मैश, 2D टॉरस, ये लीनियर अरे और लीनियर रिंग से दोनों डेवलप हुए हैं. अब इस केस में हमने कहा कि अगर हम इनकी वो निकालें यही चीजें डिग्री, डायमीटर और लिंक कॉस्ट, तो पहले डिग्री हमने देखा. दोनों के केस में डिग्री कनेक्टिविटी ऑफ ए नोड इज 4. इसके केस में बीच वालों की 4 है, एंड वालों की कम है. इसके केस में सारों की 4 है. बट इन एनी केस मैक्स डिग्री दोनों में 4 है. तो फिर 4 इधर भी 4 इधर भी 4, तो डिग्री इज 4. अच्छा, फिर बात आई कि डायमीटर को करने के लिए इसमें आसान था. डायमीटर इस वाले में डायमीटर को कहना ज़्यादा आसान है हमें कंपेयर टू दी अदर वन. तो हम इसमें डायमीटर लेंगे. डायमीटर हमने क्या कहा, हमने कहा ये पी नोड मैश है और स्क्वायर मैश है. तो अगर स्क्वायर मैश है तो अंडर रूट पी नोड्स इस डायरेक्शन में होंगे और अंडर रूट पी नोड्स इस डायरेक्शन में. अगर ये पी नोड का स्क्वायर मैश है
तो अगर ये रूट पी नोड्स इधर है और रूट पी नोड्स इधर है, तो डायमीटर में वर्स्ट केस नजर आता है इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस। ये वर्स्ट केस डिस्टेंस हमें इसमें महसूस होता है और ये है। तो उस सूरत में अगर इनके दरमियान डिस्टेंस देखें तो पहले हमें ये वर्टिकली नीचे आना पड़ेगा और फिर हम इधर जाएंगे। तो इधर ट्रेवल करने के लिए अंडर पी माइनस वन, पहले हम इस तरफ जब आएंगे तो √p-1 हमें ट्रेवल करना पड़ेगा, ओके। और फिर इधर ट्रेवल करना होगा तो फिर √p-1। इसलिए डायमीटर इस केस में ट्वाइस √p-1 फॉर द फर्स्ट केस, ये वाला केस। इस केस में डायमीटर बिकम्स इंटरेस्टिंग कि अगेन नाउ कि बिकॉज ऑफ दिस रैप अराउंड, अगर अब हम ये वाला नोड और ये वाला नोड को कंसिडर करें तो नाउ दे आर नॉट द फार्देस्ट नोड। जिस तरह लीनियर अरे में के बाद जब रिंग बना था तो ऐसे हुआ था, दे आर नॉट द फार्देस्ट नोड। अगर आप इस नोड से इस नोड का डिस्टेंस देखें तो आई विल से कि आई विल गो दिस स्टेप 1 यहाँ और फिर इधर से स्टेप 2 इधर आ जाऊं, तो ओनली 2 स्टेप अवे। आई डोंट हैव टू ट्रेवल लाइक दिस, व्हाई शुड आई। इसलिए इस केस में वर्स्ट केस लेने के लिए जैसे हमने रिंग में लिया था कि आपका इस पूरे मैश या टॉरस का कहीं इधर मिडिल में, जो वर्टिकली भी मिडिल हो हॉरिजॉन्टली भी मिडिल हो, यहाँ कहीं नोड हो, तो वो इन एन नोड से, इस नोड से या इस नोड से या इस नोड से फार्देस्ट नोड बन सकता है। तो इस मिडिल नोड पे पहुंचने के लिए ऐसे रिंग लाइक रैप अराउंड स्ट्रक्चर में अगर ये साइड √p थी तो ये √p/2 होगी, और ये वाली साइड भी √p अगर थी तो ये भी √p/2 होगी। तो इस तरह 2 √p/2, ये इसका हम यहाँ इसको भी हम लिख देते हैं √p/2। बल्कि हर एक केस में हमें इसका फ्लोर वैल्यू एक्चुअली लेना चाहिए जो भी छोटा है, √p/2। तो ट्वाइस ऑफ √p/2 इस केस में डायमीटर होगा। अब लिंक कॉस्ट मैंने कहा था कि आसान है, जितनी ज्यादा कोई रेगुलर स्ट्रक्चर होता है उसका लिंक कॉस्ट कैलकुलेट करना ज्यादा आसान। तो इस केस में ये जो टॉरस है ये ज्यादा रेगुलर स्ट्रक्चर है, यानी इसके हर नोड की कनेक्टिविटी एक जैसी है, और हमारे पास वो फॉर्मूला मौजूद है ऐसे केस के लिए कि अगर हर नोड की कनेक्टिविटी एक जैसी है तो बड़ा सिंपल है कि हम कहें एक नोड की कनेक्टिविटी क्या है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ नोड्स, और हम टोटल नंबर ऑफ लिंक्स मालूम कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 2 भी होता है, उसकी वजह मैंने बताई थी आपको। तो हम लिंक कॉस्ट के लिए इसकी लिंक कॉस्ट कैलकुलेट करने को तरजीह देंगे। तो हमने पहले इसकी लिंक कॉस्ट निकाली। लिंक कॉस्ट में क्या क्या, नंबर ऑफ लिंक्स पर नोड 4, एक नोड के साथ 4 लिंक्स, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ नोड्स, इस केस में टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर p, 4 into p, क्योंकि हर लिंक 2 दफा काउंट होता है, डिवाइडेड बाय 2, तो 2p is the number of links in this 2-dimensional mesh of p nodes। अगर हमें इसके नंबर ऑफ लिंक्स पता चल गए तो फिर 2D मैश के नंबर ऑफ लिंक्स मालूम करना ज्यादा आसान है, और छोटी सी वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है कि हम कह रहे हैं इसमें तो जो कनेक्टिविटी है और इसकी कनेक्टिविटी में क्या फर्क है, सारे लिंक्स वही रहेंगे, जो इधर हैं वो इधर भी रहेंगे, एक्सेप्ट कि जो एजिस पर ये जो लिंक्स हैं इस केस में ये कनेक्टेड है, देयर इज ए रैप अराउंड हॉरिजॉन्टल। इस केस में ये रैप अराउंड नहीं है, तो ये वाले लिंक्स नहीं हैं, ये लिंक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये कितने लिंक्स है, √p, तो √p लिंक्स आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इसी तरह इस केस में जो ये वर्टिकली लिंक्स कनेक्टेड थे
इस केस में ये कनेक्टेड नहीं है, ये वाले लिंक्स नहीं है, तो ये वर्टिकल के भी √p लिंक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जो इसके टोटल नंबर ऑफ लिंक्स थे उसमें से एक हॉरिजॉन्टल लिंक्स कट हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए, और एक वर्टिकल लिंक्स कट हो गए और सब्ट्रैक्ट हो गए। तो अगर ये 2p था तो ये 2p माइनस ट्वाइस √p, एक √p इधर से कम हो गया, एक √p इधर से कम हो गया, तो इसके लिंक कॉस्ट ये बनी। ये चीज पर हमने अपना लास्ट लेक्चर यहाँ पे फिनिश किया था। मैंने ये कहा था कि एक तो आप इस पर ये देखिए, ये उसकी समरी है, ये सारे जो मैंने अभी डिस्कस किए वो यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ तक हम आए हैं। फिर एक मैंने कहा था कि अच्छा हाउ अबाउट दिस, ये मैंने यहाँ कहा था कि अब ये आपने अभी स्क्वायर मैश और स्क्वायर टॉरस के बारे में हमने काम डिटेल से किया, जिसका ये आंसर है जो अभी मैंने डिस्कस किया था। फिर मैंने कहा अच्छा ये आप करके आइए घर से कि अगर यही मैश और टॉरस की टोपोलॉजी के डायमेंशन, एक तो ये स्क्वायर ना हो, रेक्टेंगुलर हो, जनरल केस हम ले रहे हैं रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगुलर में जाहिर है फिर डायमेंशन रो और कॉलम की डिफरेंट होंगी। तो हमने कहा अच्छा भाई ये बताओ कि अगर अब ये मैश, पहले जो मैश लिया था हमने क्या लिया है, ये वाला, ऊपर हमने कहा कि ये टोटल नोड्स p है, ये डायमेंशन √p है, ये डायमेंशन √p है, और इस तरह टोटल नंबर ऑफ नोड्स p है, p। और हमने ये सारी कैलकुलेशंस की। अब हम कह रहे हैं कि इट इज नॉट ए रेक्टेंगुलर मैश, इट्स नॉट अ स्क्वायर मैश, इट्स ए रेक्टेंगुलर मैश, जिसका ये साइड m है, ये साइड m है, m, और ये साइड n है। ऐसा रेक्टेंगुलर मैश अगर हो, अब उसके ये पैरामीटर्स आपने बनाने हो, ये मैश के भी बनाने, ये मैश ऐसा हो और इसी में रैप अराउंड कर देंगे तो टॉरस बन जाएगा। तो m/n मैश या m/n टॉरस, उनके ये पैरामीटर्स क्या होंगे, ये वाले डिग्री, डायमीटर और लिंक कॉस्ट। यहां अब स्क्वायर नहीं रहा, इट्स रेक्टेंगुलर मैश, रेक्टेंगुलर मैश, और उसकी डायमेंशन अब √p नहीं है, ये अब है m इंटू एन, m इंटू एन, एक साइड से m है। तो इसके बताइए ये पैरामीटर, इसी तरह इसके यही सारी चीजें इसमें चेंज हो जाए, ये वाली चीज भी उसी तरह हो जाए, ये m इंटू एन, और फिर इसके भी बताएं कि ये क्या चीजें होंगी, बताइए। अब ये वाले मामला तो नहीं रहेंगे क्योंकि अब ये स्क्वायर बच नहीं रहा। तो मैंने कहा था आप फाइंड करके आए। अब बताइए मुझे कि रेक्टेंगुलर मैश हो जिसकी डायमेंशन m इंटू एन है, तो इसकी डिग्री, डायमीटर, लिंक कॉस्ट क्या होगी, और इसी तरह टॉरस की डिग्री, डायमीटर, जो भी आपको आसान लगते हैं वो बेशक पहले बता दें। इनफैक्ट कैलकुलेशन में भी बात चीजें आप पहले सॉल्व करना चाहेंगे और बाद में। तो बताएं ये वैल्यूज बताइए, अब आप लोग बताएं। माय दैट वाज, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, तो हु वुड लाइक टू टेल दैट। ये पैरामीटर्स अब मुझे बताएं, एक मैश जो m/n है और टॉरस पे m/n है, बताएं somebody, can somebody? सर फिर ये तो m cos n ही आएगा। ओके, बोले क्या चीज, ये डिग्री, ये इसकी वैल्यूज बतानी, जैसे यहां लिखी हुई थी पहले स्क्वायर के केस में p नोट का था, हर डायमेंशन √p/√p थी, और फिर हमने ये लॉजिक से कैलकुलेशंस जो फाइंड की वो ये थी। अब हम कह रहे हैं ये m का डायमेंशन m है, ये n है, m/n डायमेंशन का
रेक्टेंगुलर मैश और टॉरस है, और उसकी मुझे बताएं, मैश के केस में बताएं कि डिग्री वगैरह क्या है, डिग्री डायमीटर और लिंक कॉस्ट बताएं। डिग्री, चले शुरू करें। डिग्री बोले, डिग्री तो आसान है। डिग्री इज इजी। डिग्री कैसे देखनी है भाई? डिग्री ऐसे देखनी है, कोई भी नोड, ये मैश है या बस सिवाय ये रो और कॉलम की तादाद चेंज हुई है, लेकिन कोई भी नोड लें कहीं पर भी, बीच में यहाँ एक कोई नोड ले लें, ये तो ये इस मैश में भी इसी तरह कनेक्टेड होगा। कोई भी नोड इन बिटवीन, बीच के नोड सारे ऐसे ही कनेक्टेड होंगे। अगर ये कनेक्टेड होंगे मैश है फिर भी ऐसे कनेक्टेड होंगे। और वो फर्क यहाँ भी होगा, अगर मैश है तो एंड के नोड पर इधर कनेक्ट होगा, इधर कनेक्ट होगा, इधर होगा, इस तरफ नहीं होगा, तीन होंगे। कॉर्नर वाले में इधर कनेक्टेड होगा, इधर होगा, मगर ऊपर और नीचे नहीं होंगे। लेकिन सारे जो दरमियान के हैं वो अभी भी 4 एडजेसेंट नोड से कनेक्टेड होंगे। मैश में भी ये होगा, और टॉरस में तो ये वाले भी 4 से ही कनेक्टेड होंगे, ये भी 4 से, ये भी 4 से। तो मैश में तो दरमियान वाले 4 जो थे पहले 4 के साथ कनेक्टेड, वो अभी भी है मैश में। मैश के एंड वाले कम होते हैं, टॉरस में एंड वाले भी 4 से कनेक्टेड हैं। दोनों में कनेक्टिविटी ऑफ ए नोड मैक्सिमम इज 4। ओके, सर इसकी डिग्री भी 4 होगी। डिग्री भी 4 होगी, वेरी गुड। तो यहाँ भी 4, इसकी भी 4, वाले की भी 4 होगी। ये ज्यादा यूनिफॉर्मली सारे नोड्स की 4 है, इसमें बीच वालों की 4 थी, एंड वालों की 4 नहीं है, मगर हमने मैक्सिमम केस लेना था तो 4 ही लेंगे। ओके, चलें। अब बताइए डायमीटर। मैश वाले केस में डायमीटर बताएं। ये मैश वाला केस है, मैश वाले केस में डायमीटर m-n होगा सर। ओके, m माइनस n, वन होगा। ओके, सर m इसमें मैं माइनस, थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ ओके। इस वाली। अच्छा, बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे ना तो फिर बिल्कुल इसमें रट्टा अगेन नहीं है, हमने पहले भी जो कैलकुलेट किए वो समझ के किए। हमारा डायमीटर की डेफिनेशन ये है कि फारदेस्ट नोड्स जो हमें इसमें लगते हैं उनके दरमियान क्या डिस्टेंस होगा। मैश में हमने पहले भी किया, अब भी हमें यही लगता है कि फारदेस्ट नोड्स ये हो सकते हैं, एक ये और ये मैश में, ये मैं मैश की बात। इसी तरह ये नोड और ये नोड फारदेस्ट हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये दो। चले जी, हम इस केस को ले लेते, दोनों का एक जैसे ही मामला है, इसलिए इस नोड और इस नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी डायमीटर, क्योंकि ये फारदेस्ट नोड्स हैं। ये नोड और ये नोड का डिस्टेंस छोटा है, ये नोड और ये नोड का डिस्टेंस भी छोटा है, सबसे ज्यादा बड़ा डिस्टेंस इस नोड और इस नोड के दरमियान है। ये डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। कैसे? अगर मुझे यहां से यहां तक जाना हो तो सिंपल तरीका है कि पहले मैं वर्टिकली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल करूंगा, तो मैं यहां से यहां तक ट्रेवल करूंगा, तो ये फासला कितना होगा? m-1, क्योंकि ये m नोड्स हैं तो इनके दरमियान ट्रेवल करने के लिए एक स्टेप कम होता है, तो m-1 यहां तक आ जाऊंगा। सो आई हैव रीच्ड हियर। अब मैं इधर से और इधर तक ट्रेवल करना चाहता हूँ, ये वाला ट्रेवल करना चाहता हूँ। अब ये कितने नोड्स है? n है, तो n-1। तो डायमीटर क्या हुआ मैश के केस में? m-1 और प्लस n-1। वेरी गुड। तो 2D मैश में यहाँ m-1 और प्लस n-1, ये हो गया। इसको बेशक ब्रैकेट खोलेंगे तो थोड़ी सी कोई वैल्यू होगी, बहरहाल सेम आंसर यही। अच्छा जी, अब चलो यहीं पर ही इसका डायमीटर निकालते हैं।
अगर ये टॉरस हो, यानी अब अगर ये लिंक जुड़े हुए हैं, वो रैप अराउंड वाले हैं, उस केस में डायमीटर क्या होगा? चले, यानी अब ये टॉरस की शक्ल है, जो रैप अराउंड हुए हुए होते हैं टॉरस में। अब अगर मुझे डायमीटर निकालना हो तो अब क्या होगा बताएं? m-1/2 ओके plus n-1/2. ओके, वेरी गुड, यू गेव द राइट आंसर। मगर थोड़ा सा मामूली सा एरर है। जब हम ये हाफ कर रहे हैं तो हाफ करने में हमने जो भी वो लेंथ थी उसको हाफ किया, स्टेट -1 नहीं किया। और -1 का जो मामला है वो कैसे कैटर हुआ, वो हमने देखा था कि हमने वो फ्लोर वैल्यू ले ली थी। मगर जनरली जो आपने कहा कि इस केस में हमें जब डिस्टेंस निकालना होगा तो इट विल बी फारदेस्ट नोड्स होंगे, मे बी ये नोड विद सम सेंटर नोड एयर, इसका डिस्टेंस हमें मालूम करना है। एंड यू राइटली सेट कि वो डिस्टेंस ये होगा कि दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, ये होगा। अच्छा, अब ये डिस्टेंस जो है, मैं इसको m, टोटल लेंथ m है तो मैं इसको m/2 कहूंगा, आधा, और इसको n/2 कहूंगा, आधा, जो विच यू सेट। -1 नहीं आएगा। हाँ अब माइनस इस तरह कैटर फॉर होता है इस केस में कि आप जब किसी चीज को ऐसे रैप अराउंड वाली चीज को हाफ करते हैं ना, ये यहां से आपने किया है, तो जब आप इसको इसका मिडिल निकालते हैं तो एक तरफ से एक स्टेप कई दफा बड़ा हो सकता है, कई दफा तो बिल्कुल इक्वल होगा, और कई दफा ऑड और इवन नोट्स की वजह से एक साइड एक स्टेप ज्यादा, और इधर से डिस्टेंस 4, इधर से डिस्टेंस 3, इधर से डिस्टेंस 7, इधर से डिस्टेंस 6, एक नोट का फर्क हो सकता है जब पूरे इवन नहीं है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर -1 के बजाय इसको फ्लोर वैल्यू हाफ किया, और फ्लोर वैल्यू का मतलब जिधर से छोटा है वो वैल्यू लेंगे, तो इसमें -1 नहीं होगा। तो m/2 का फ्लोर वैल्यू प्लस n/2 की फ्लोर वैल्यू, तो यहाँ m/2 की फ्लोर वैल्यू प्लस n/2 की फ्लोर वैल्यू, ये n/2 प्लस n/2 की फ्लोर वैल्यू, ठीक है? ऑलराइट, एग्रीड? अच्छा, अब तीसरा क्या रहेगा? लिंक कॉस्ट। लिंक कॉस्ट मैं कहता हूं कि इसकी आसान है, इसकी, ये रैप वाले की लिंक कॉस्ट आसान होती है इसलिए कि उसके सारे नोड्स की कनेक्टिविटी एक जैसी है। यानी जब ये रैप अराउंड जोड़ देते हैं तो हर नोड की कनेक्टिविटी अब 4 होगी इस केस में, ये जो टॉरस वाला केस है। जबकि हमें पता है मैश में कोनों वाले नोड्स की कनेक्टिविटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जिसके लिए हमें कुछ करेक्शन लगानी पड़ेगी, तो हम पहले ये वाला लेते हैं, लिंक कॉस्ट। हम कहते हैं लिंक कॉस्ट, बताएं जी क्या होगी? लिंक कॉस्ट बताइए इस केस में, टॉरस में पहले कर लेते हैं, टॉरस में लिंक कॉस्ट n cross ओके n ओके, cross n होगी सर। m×n, ओके, लेट्स सी लिंक कॉस्ट का रेगुलर फॉर्मूला या तरीका क्या है कि एक नोड की कनेक्टिविटी को नंबर ऑफ नोड्स से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा फॉर्मूला है। जब रेगुलर स्ट्रक्चर है और हर नोड की कनेक्टिविटी एक सेम है तो ये फॉर्मूला बड़ा आसान है, अंडरस्टैंडेबल है कि भाई एक नोड के साथ 4 लिंक लगे हुए हैं, ये हर नोड के साथ 4 लिंक्स आर कनेक्टेड, तो नंबर ऑफ लिंक्स पर नोड, इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो वो यही है आपके, बार बार नंबर ऑफ लिंक्स, फॉर्मूला है ये, नंबर ऑफ लिंक्स पर नोड, एक नोड के साथ कितने लिंक्स लगे हुए हैं, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ नोड्स, कितने नोड्स हैं, तादाद क्या है नोड्स की, एक नोड के साथ कितने लिंक्स और टोटल नोड्स कितने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ लिंक्स निकल आएंगे। क्योंकि लिंक्स 2 दफा काउंट होते हैं एनी पेयर ऑफ नोड्स में, तो डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला है टू फाइंड द नंबर ऑफ लिंक्स, ये होता है लिंक कॉस्ट का फॉर्मूला, ये है, ओके, जनरल फॉर्मूला। तो अगर हम इस केस में ये फॉर्मूला लगाएं तो हम कहते हैं टॉरस के केस में हर नोड पे 4 लिंक्स हैं,
ओके, तो टोटल आपने बताया सही, राइटली, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इस केस में m इंटू एन है, mn, तो 4 इंटू mn, 4 is the number of links per node, mn is the number of nodes, divided by 2 क्यों है, हर लिंक 2 दफा काउंट होता है, इसलिए काउंट के वजह से हमें डिवाइड बाय 2 की। तो अब ये 2 इस 2 से ये होगा ट्वाइस 2mn, 2mn इस केस में। ओके, हमने ये बेसिक डेफिनेशन से इसे कैलकुलेट किया है, ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन से हमने इसको कैलकुलेट किया 2mn। ओके, अब इसके बताइए समबॉडी, इसकी मदद से 2mn इसके हैं टोटल। अब बताएं कि इस केस में अगर ये हमने 2mn कहा है जब ये रैप अराउंड के साथ थे, ये रैप अराउंड के साथ, तो इस वाले के अंदर तो हर नोड के 4 इसके थे लिंक्स, ऊपर वाले जो है उसके तो जो साइड पर नोड्स आएंगे उनके तो 4 लिंक ही हैं। करेक्ट, तो विच मीन्स कि आपको कुछ लिंक सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। इधर जो आपने लिंक्स सारे कैलकुलेट कर लिए हैं टॉरस के लिए, जब आप मैश पे जाएंगे तो मैश में कुछ लिंक्स नहीं होंगे। कौन से नहीं होंगे? मैश में सारे लिंक्स होंगे एक्सेप्ट कि ये जो रैप हो रहे हैं एंड पे हॉरिजेंटली, रो वाले जो हो रहे हैं रैप, ये नहीं होंगे, ये कट जाएंगे, गायब हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ये सारे। इसी तरह ये जो वर्टिकली सारे रैप होते हैं, ये वर्टिकली ये सारे, ये अब मैश में रैप नहीं हो रहे होंगे, ये कट कर देंगे। बस सिर्फ ये लिंक्स नहीं होंगे, बाकी सारे लिंक्स वही होंगे जो इधर हमने कैलकुलेट किए फॉर्मूले से। तो ये 2mn में से सब्ट्रैक्ट होगा क्या? एक, जितनी रोज हैं उनके एंड के लिंक्स आप समझ लीजिए, अगर m रोज हैं तो m लिंक्स तो ये कट हो जाएंगे, और अगर n कॉलम्स हैं तो n लिंक्स ये कट हो जाएंगे। तो टोटल जो थे टॉरस के वो थे 2mn, वो 2mn है, वो हमने कैलकुलेट किए थे बाकायदा इस फॉर्मूले से कि जी 4 है हर एक के साथ और mn है तो डिवाइड बाय 2 तो 2mn। लेकिन इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे रो वाले लिंक्स m और फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे कॉलम वाले लिंक्स n। तो इसका आंसर होगा ये वाला 2mn माइनस m माइनस n। ओके, ऑलराइट, अच्छा, वेरी गुड। तो अब हमने ये वाला भी पार्ट पूरा कर लिया, ये मैंने लिख लिया। यहाँ पे देखोगे कि इक्विवेलेंट यही वैल्यूज हैं, ये मैं यहाँ पर लिखी हुई है विदाउट रैप की, ये वाली मैश की। विद रैप भी हमने वैल्यूज कैलकुलेट की है, जो विदाउट रैप और फिर आगे विद रैप भी। चलो, ओके, ये काम हो गया। अब चलो एक ट्री, क्योंकि ट्री एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर आजकल के ज़माने में इसलिए है कि जो हमारे डेटा सेंटर्स हैं उनमें जो स्विचेस की स्ट्रक्चर है वो कनेक्टिविटी की वो ट्री लाइक होती है, इसलिए ट्री को भी हमें देखना चाहिए। कहीं भी हायरार्किकल कनेक्टिविटी जब देनी होती है तो आप ट्री लाइक स्ट्रक्चर से हम देते हैं। अच्छा, अब वो क्या है, ये हमारे काम हो गए, ये हमने अभी काम किया है, ये जो आपने अभी कैलकुलेट किया है ये दोनों, वी हैव डन दैट। ये अब ट्री पे आ गया। अच्छा जी, ट्री ये स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ट्री के अंदर पहले थोड़ी सी ट्री के लिए टर्मिनोलॉजी और टर्म। ट्री के लिए लोग एक बात, ट्री की जो सबसे पहला नोड ऊपर होता है इसको रूट ऑफ द ट्री कहते हैं। ट्री अमूमन तो नीचे रूट होती है और ऊपर की तरफ फैलते हैं, लेकिन जब हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं तो उसके लीव्स को नीचे बनाते हैं और रूट को ऊपर बनाते हैं। तो ये सबसे ऊपर का नोड जो है ये रूट ऑफ द ट्री कहलाता है। इस केस में ये स्ट्रक्चर बनाई है हमने। अच्छा, किसी भी जगह ट्री में
एक ऊपर नोड होता है और फिर कुछ उसके नीचे नोड होते हैं, ठीक है। यहां पर भी है, जैसे ये है ऊपर वाला नोड जिसके साथ फिर कुछ नीचे नोड कनेक्टेड हैं, तो हम इनके नाम, ये पेरेंट है नोड है और ये उसके चिल्ड्रन नोड है। तो पेरेंट एंड चाइल्ड, पेरेंट, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड। इस चाइल्ड का ये पेरेंट है, इस चाइल्ड का ये पेरेंट है, ये पेरेंट नोड है। तो पेरेंट एंड चाइल्ड का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड ट्री में चलता रहता है। सबसे आखिरी के जो नोड होते हैं इनको लीफ नोड कहते हैं। जो आखिर में ट्री के अंदर अगर रूट ये हो तो सबसे एंड पर जो होते हैं, ये ब्रांचेस निकल रही हैं सबसे आखिर में, उनको हम लीफ कहते हैं। ये लीफ नोड, तो यहाँ ये लीफ नोड हो गया, ओके। फिर ट्री में लेवल, ये लेवल, हम लेवल यहां से लेवल को शुरू करते हैं ज़ाहिर रूट से, लेवल नंबर 0, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3, लेवल नंबर, अगर इस तरह चलते जाएं बहुत सारे तो के लेवल्स तक जा सकते हैं। K-1 लेवल, अगर के लेवल का ट्री है तो लेवलों के नंबर जो होंगे वो लेवल नंबर 0 से लेकर और लेवल नंबर K-1 तक होंगे। तो इट इज ए के लेवल थिंग। अगर इसकी हाइट हम कहेंगे तो नेचुरली अगर के लेवल का मतलब है यहां से यहां तक के होगा, ठीक। तो हाइट एक लिंक कम होगा K-1, तो ये लेवल नंबर, हाइट नंबर, ओके। अब ट्री के अंदर एक बात जो हम ट्री की एक टाइप कंसीडर कर रहे हैं, कोई भी ट्री में एक लीफ, एक पेरेंट के बहुत से चिल्ड्रन हो सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। There can be one parent, there can be 4 children. एक नोड इसमें उसके 4 चिल्ड्रन हो, एक और नोड हो उसके 3 चिल्ड्रन हो, एक और नोड हो उसकी 2 चिल्ड्रन हो, एक और नोड हो उसका कोई चिल्ड्रन चाइल्ड ना हो, फिर ये ऊपर इनका पेरेंट हो, मे बी इनका ये पेरेंट है और इन दो का मे बी ये पेरेंट। इस तरह जनरल ट्री ये होता है कि इट कैन हैव मल्टीपल चिल्ड्रन और हर नोड पे डिफरेंट चिल्ड्रन की तादाद हो सकती है। लेकिन हमारे इंटरेस्ट का खसूसन कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स और नेटवर्क्स में जब हम देखते हैं तो हमारे ज़्यादा इंटरेस्ट का, क्योंकि बाइनरी से डील करने का हमारा माहौल है, तो हम बाइनरी ट्री को ज़्यादा कंसिडर करते हैं। बाइनरी ट्री का क्या मतलब है, जिसमें सिर्फ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। यानी जिस तरह बाइनरी में 2 ऑप्शन है 0 और 1, इसी तरह बाइनरी ट्री का मतलब होगा कि केसेस ऑफ 4 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन वगैरह की बजाय हमारे पास मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक का चॉइस, ये बाइनरी ट्री। तो हम बाइनरी ट्री कंसीडर करेंगे, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें बाइनरी ट्री लेंगे, ओके फाइन। तो अब अगर बाइनरी ट्री है तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास हिसाब बन जाता है, बाइनरी ट्री से मामला बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, बाइनरी ट्री में भी और मिसाल ले लें, कंप्लीट बाइनरी ट्री, यानी हर नोड के 2 चिल्ड्रन होंगे और हम एंड तक पूरा कंप्लीट करेंगे। वरना हम ये भी कर सकते थे कि ये बाइनरी ट्री जाते यहाँ पर 2 और यहाँ पर कोई ना करते, एक इस लेवल पे 2 होते, इसका कोई ना होता, फिर भी ये बाइनरी ट्री होता, क्योंकि बाइनरी ट्री का मतलब है कि चिल्ड्रन आपके 2 हो या 2 से कम हो तो एक्सेप्टेबल है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ 0 चाइल्ड और यहाँ 2 चाइल्ड एक्सेप्टेबल होता, तो यहाँ ये हिस्सा खाली रहता। मगर हम कह रहे हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री, सिंपल मामला रखने के लिए कि हर लेवल पर जो है टोटल सारे चिल्ड्रन फिल होंगे। ये इससे आगे जाएंगे तो इसमें भी हर एक पे 2 फिल करेंगे, इससे आगे जाएंगे उसमें भी हर नोड पे 2 फिल करेंगे। तो पूरा कंप्लीट बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी। तो हम कंप्लीट बाइनरी ट्री को कंसिडर कर रहे हैं एज ए स्पेशल केस फॉर आवर
this connectivity, parallel interconnection network. अच्छा, अगर ये है तो चलिए अब बताइए कि ऐसे केस में आप मुझे इसकी, अच्छा अब हम इस केस में कुछ प्रॉपर्टीज देख लें। जब कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो फिर हमें ये निकालना बहुत आसान है, ये L2 फिर ये L3 मैंने एक लेवल और ड्रॉ कर दिया। चल फिर हर लेवल पर कितने नोड्स हैं ये डिफाइन करना बड़ा आसान हो जाता है। अगर आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो हर लेवल पर नोड्स की तादाद क्या है, बहुत आसान है। लेवल 0 पे नोड्स की तादाद ये है नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स हर लेवल पे, एट ए लेवल, एट लेवल L। तो यहां पर L इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ नोड्स 2 टू द पावर 0। L अगर 0 है तो नंबर ऑफ नोड्स की तादाद 2 टू द पावर 0 यानी कि 1 नोड है। यहां पे ये लेवल नंबर 1 है, लेवल इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ नोड्स इस लेवल पे कितने होंगे, 2 रेज टू पावर 1 विच इज 2। वेरी, ये लेवल 2 है, इस पे L इज इक्वल टू 2। इस पे नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगे, 2 रेज टू पावर 2 विच इज 4। आप देखें कितने आराम से हम ये कैलकुलेट करते जा रहे हैं, 2 रेज पर 2 4। इसी तरह लेवल, इसका नंबर लेवल 3 है, L इज इक्वल टू 3। इस पे नंबर ऑफ नोड्स क्या हो गए, 2 रेज टू पावर 3 विच इज 8। वेरी इंटरेस्टिंग, लेवल का नंबर ऑफ नोड्स से बाइनरी ट्री में बहुत आसानी से लिंक किया जा सकता है, दूसरे ट्रीज में इतना आसान नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर आप मुझे टोटल नंबर ऑफ नोड्स बता दें कि अगर ऐसा एक बाइनरी ट्री है, और मैं आपसे कहता हूं एक बाइनरी ट्री जिसके L लेवल्स हैं या K लेवल्स हैं, K लेवल 0 से लेकर L इज इक्वल टू 0 से लेकर और L इक्वल टू ये K-1 आखिरी लेवल ये, तो आप इसमें नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगे, उनकी तादाद मुझे दे दीजिए। अगर मैं ये मांगूं तो इस केस में बहुत आसान है, बाइनरी ट्री में आप ये बात मैथमेटिकली रिलेट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स की तादाद क्या है। ओके, कैसे होगा, ओके नो प्रॉब्लम। टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन ए बाइनरी ट्री। अब क्या क्या चीजें है, ये बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री है एक बात, कंप्लीट बाइनरी ट्री, बल्कि कंप्लीट बाइनरी ट्री, और इसके नंबर ऑफ लेवल्स जो हैं वो के हैं, के लेवल्स। ओके, तो क्या कितने होंगे, हमने अभी देखा कि पहले वाले में 2 टू द पावर 0, दूसरे वाले में 2 टू द पावर 1 नोड्स, तीसरे वाले में 2 टू द पावर 2 नोड्स, टोटल 15। आइयत हाँ, अब ये 15 वाली बात पे भी आते हैं। आइयत लेवल नंबर I या लेवल नंबर L 2 टू पावर I, और आखिरी हम कह रहे हैं K-1 है सबसे हाईएस्ट, तो 2 रेज टू पावर K-1। अच्छा, अब आपने जो कहा 15, दैट इज ए स्पेसिफिक केस इन दिस डायग्राम जब आपके लेवल 4 है, L0, L1, L2, L3, इस केस में ये 15 है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये बताइए कि इन जनरल केस, बिल्कुल ठीक है, ये वाला 15 वाली बात भी सही आएगी,
ये सम काय के बराबर होगा अगर हम इनको ऐड करें? व्हाट वुड इट बी इक्वल टू? टोटल नोड्स के बराबर है। चलो जितनी ट्री में नोड इसी की इक्वलिटी आएगा जो हमारे पास ट्री बनेगा, बेशक हाँ वो जितनी बड़ी हो, क्योंकि हाँ, लूप लग रही है नंबर ऑफ और जो नोड्स के है हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स, उसी के लिए उसकी इक्वलेंट आ जाएगा। तो के इसका, माइनस वन पे हमारे पास लेवल्स आ जाएंगे। हाँ इसको अगर आप ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? मुझे सम का आंसर बताओ। के माइनस वन टू की पावर के माइनस वन टोटल। तो ये मैं कैलकुलेट करूँ। बताओ। तो आपका नॉर्मल सम का फॉर्मूला भी इस पे लग सकता है, मगर मैं आपको उससे भी ज्यादा सिंपल उसका आंसर दूंगा। लेकिन पहले आप थोड़ा सा सोचो कि अगर इन्हें आप ये ऐड करो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए। अगर इनको आप सम करते हो तो व्हाट आंसर यू शुड गेट? सर यही 15 ही आएगा अगर इस ट्री डायग्राम को लेके करना है तो। नहीं, या तो हम कह रहे हैं ये बाइनरी ट्री जिसके के लेवल्स हों 0 से लेकर के टू माइनस की वन, पावर के माइनस उसके वन। नोड्स की तादाद 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power I 2 raised to power k minus 1। हमारे पास एक्चुअली यहाँ वैल्यू है कि इट इज ए के लेवल बाइनरी ट्री और हाईएस्ट लेवल के नोड्स 2 raised to power k minus 1 है। तो अब यह बताएं कि वो क्या होगा। बाइनरी में तो सर सिर्फ दो ही आएंगे मैक्सिमम। दो ही हैं? हाँ, दो बाइनरी के हिसाब से दो ही आएंगे। जस्ट टू? नहीं, ये जो के है, के की बात कर रहा हूँ, के वाली वैल्यू की। क्योंकि ओके। इसके तो फिर लेवल दो ही बनने हैं ना सर, क्योंकि अगर बाइनरी या तो वन होगा या तो जीरो हाँ, होगा, तो मतलब दो अगरचे दो आप ये समेशन फॉर्मूला जो आपका होता था कि पहला ए वो नहीं था, ए माइनस वन ए प्लस एल जी से जी मल्टीप्लाई करके जी करें, उससे भी ये कैलकुलेट कर सकते हो। मगर मैं आपको उससे ज्यादा आसान बताता हूँ। इफ यू कैन लिंक इट कि आपका जो एक बाइनरी नंबर के बिट का होता है, के बिट का बाइनरी नंबर जो होता है, हियर इज ए के बिट बाइनरी नंबर मैं लिख रहा हूँ, के बिट का बाइनरी नंबर, ये के बिट नंबर है, ये के बिट नंबर है। जी अगर हम इससे पूछें कि इसकी वैल्यू, डेसिमल वैल्यू क्या है, तो आप यही करते हो 1 इंटू टू रेस पर 0, 1 जी इंटू टू रेस पर 1, 1 इंटू टू रेस वन पर 2, और आखिरी होता है 1 इंटू टू रेस पर के माइनस 1, और इन सब की वैल्यूज को ऐड करते हो और आपका आंसर आता है। जी इनको ऐड करने से आपका आंसर क्या आता है? अगर ये के बिट है तो 2 टू द पावर के माइनस 1, ये वाला, ये ये जीरो, ये 2 टू द पावर 0 है, और ये 2 टू द पावर के माइनस 1 पावर में के माइनस 1 है। तो इसका आंसर आपको अब मिलता है 2 टू द पावर के माइनस 1। अच्छा, अब इस बात को थोड़ा सा समझने के लिए आप अब ये वाली कोई भी मिसाल ले लो। अगर आपका 3 बिट का नंबर है तो ये 3 से आप निकालो, ये 3 बिट, तो इसकी इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी? सारे अगर 1 होंगे, 2 रेस टू पावर 3 माइनस 1 7, ये 7 इस तरह बनता है, ठीक है। जी अगर इस केस की तरह 4 बिट का नंबर हो तो 2 रेस पावर 4 माइनस 1, इसीलिए ये 15 कहलाता है। अगर यानी सारे वंस हैं तो इसकी वैल्यू ये बनती है 2 रेस पावर 4 माइनस, जितने बिट्स हैं 2 दी पावर दैट माइनस 1, सही है। जी तो ये भी वही केस है कि सारे वंस होने से आपने 0 से लेकर 2 के माइनस 1 तक लिया है, तो ये बनेगा ये 2 टू द पावर के माइनस 1, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 टू द पावर के और माइनस 1। ये सम करने से आएगी ये वैल्यू। नोट्स की तादाद, नोट्स की तादाद को सपोज हम लिख देते हैं टोटल नंबर नोट्स, लाइक प्रीवियस केस पी। सपोज हम कह रहे हैं एक वेरिएबल का नाम रख दिया पी है, हमें फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ नोड्स जो होंगे 2 टू द पावर के माइनस 1 होंगे। अब आपकी वो वाली बात यहां से दोबारा टैली हो जाएगी जो आप 15 वाली बात कह रहे थे कि अगर ये 4 लेवल का ट्री है तो ये 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, पी की तादाद 15 है? ऐसे ही है। जी
तो अच्छा, अब इसको अगर आप हम लॉग ले लें, पहले ये -1 को इधर ले आए तो ये बन जाएगा p + 1, p + 1। एक लिहाज से आपने 16 कर दिया, 16 इज इक्वल टू 2⁴ है ना, तो देयर इज ए रिलेशन थ्रू एस्पेक्ट के। अगर अब आप इनके दोनों साइडों की लॉग लो, ये दोनों साइडों का आप लॉग ले रहे हो, लॉग ऑफ p + 1, लॉग ऑफ p + 1 आपने लिया इधर का, log of p + 1 to the base 2, ये base 2 हो जाएगा ना, to the base 2 is equal to k। अब आपका जो k है, नंबर ऑफ लेवल जो थे इसमें k, वो होगा ये इसके बराबर, यानी इसके k लेवल्स हैं अगर, तो आप k विल बी इक्वल टू log of p + 1 to the base 2, यानी कि अगर आपके 4 लेवल्स हैं, 4 लेवल्स हैं, तो उसका मतलब है आपके 6, ये p जो है आपका इसमें 15 था, 15 + 1 16, log of 16 to the base 2 that is 4, ठीक है। तो ये आपका ये रिलेशन 2⁴ is p + 1, ये तो ये लॉग वाला एक दफा फिर बता दें। लॉग, कोई भी चीज के लॉग, अब हम मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स से देख रहे हैं और ये तो ऊपर लिख दें जहाँ पे जगह। हाँ, ये p + 1 is 2k, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मेरे इस केस में हो रहा है, मैंने देखा कि p + 1 is equal to 2 to the power k, where k is the number of levels, कि कितने लेवल्स हैं इसमें, ठीक। उससे पहले ठीक, ये हो गया, ये बने, अच्छा, ये यहां तक आपको समझ आ गया। अब हम कह रहे हैं टेक लॉग ऑफ बोथ द साइड्स, टेक लॉग, अच्छा इसका लॉग ले, अच्छा लॉग लेने के लिए हमेशा एक, जब ये 2 to the power k ये लेंगे, तो लॉग लेने के लिए आपको बेस का भी तय करना पड़ता है, ठीक है। आप कई लिहाज से कह सकते हो लॉग, अब आप दोनों साइडों का लॉग ले रहे हो, तो इसका लॉग लोगे, दो तरह से लॉग की बात को आप देख सकते हो कि जब ये पावर वाली चीज हो तो लॉग ऑफ, एक तरीका लॉग ऑफ दिस नंबर, जो भी कोई नंबर होता है, हमें नहीं पता है जो भी नंबर, लॉग ऑफ ए नंबर, इफ लॉग इज टेकन टू दिस बेस, जो इधर राइट साइड पे, टू दिस बेस, द आंसर इज k। इट इज लाइक 2 to the 10 raised to the power 2 या 10 power 3 is 1000। तो हम जब इसको लिखते हैं तो हम कहते हैं log of, ये हम किसे, log of 1000 to the base, ये वाला base to the base 10 will be 3। Do you know that? You agree with that? यस सर। इस बात से आप एग्री करते हैं? जी सर। इसी तरह हमेशा बेस लॉग का या किसी भी चीज का 10 होना जरूरी नहीं है, यहां बेस 2 है, तो अगर कोई भी नंबर इज इक्वल टू 2 to the power k, तो आप अगर इस लेफ्ट साइड का लॉग लें टू दिस बेस, तो दैट विल बी दिस आंसर k, ठीक है। जिस तरह यहां था, इसमें और इसमें सिमिलैरिटी है, डू यू सी दैट? अगर और इसकी मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन चाहिए तो वो मैं दे सकता हूं। नहीं सर, बस क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। तो हमने ये वाली बात यहां लिखी है कि हमारे इस बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ लेवल्स अगर k हैं, तो नंबर ऑफ लेवल्स की तादाद लॉग ऑफ नंबर ऑफ नोड्स प्लस 1 बेस 2 इसके बराबर है, ठीक है जी सर। अच्छा, अब रह गया वो, हम तो यूनिट देख रहे थे, स्लाइड पे डायमीटर का लिखा हुआ है। हाँ, अब उधर चले जाते हैं, अब हम डायमीटर पे आएंगे। अभी तक तो हमने नंबर ऑफ लेवल्स कैलकुलेट किए, अब नंबर ऑफ लेवल्स अगर यहां से यहां तक k हैं, तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा,
ये डिस्टेंस क्या होगा? अगर ये लेवल्स के हैं तो डिस्टेंस k माइनस 1 होगा, ठीक है ना? जी ये डिस्टेंस अगर के ये माइनस कोई भी, अगर k नोड्स, ये k लेवल्स हैं, अगर ये k लेवल्स हैं तो यहां से लेकर और यहां तक का डिस्टेंस विल बी k माइनस 1। जैसे हम लीनियर अरे में कह रहे थे, लीनियर अरे में अगर कोई एक लाइन हो और ये टोटल नोड्स फर्स्ट करो n हो एक लाइन में, तो इस नोड से इस नोड का डिस्टेंस क्या होगा? n माइनस 1, यही था ना? इसी तरह अगर हम कह रहे हैं कि यहां से लेकर सिंगल राइज करते जाए लेवल, ये अगर इनकी तादाद k है, यहां से यहां तक k है, तो ये डिस्टेंस इनका क्या होगा? k माइनस 1, ठीक है? जी सर। अच्छा, अब इस नोड से लेट से इस नोड का डिस्टेंस वो भी k माइनस 1। वर्स्ट केस यही है, सबसे लीफ से लेकर रूट तक चढ़ के जाएं, अगर ये लेवल्स k थे तो k माइनस 1 आपको ऊपर जाना पड़ेगा और k माइनस 1 आपको नीचे आना पड़ेगा, इस नोड से लेकर इस नोड तक ट्रेवल करना हो, ऐसे ही है। जी एंड दिस इज द वर्स्ट केस ऑफ डायमीटर, यानी ये फारदेस्ट नोड्स यही बनते हैं कि इस लीफ नोड से राइज करके रूट तक जाओ और रूट से करके दूसरे लीफ नोड पे आओ, दिस इज द वर्स्ट केस ऑफ डिस्टेंस। तो ये डायमीटर है, तो डायमीटर विल बी ट्वाइस ऑफ दिस k माइनस 1 और k माइनस 1, वो ये लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ k माइनस 1। ये हमने k तो कैलकुलेट कर ही लिया था, ये k था हमारा, ट्वाइस ऑफ k माइनस 1 इज द डायमीटर, ठीक है? जी ओके बाकी अब इसमें क्या, चलो हाँ, बाकी ये बताओ, डिग्री, डिग्री बताओ इसमें क्या है? व्हाट विल बी द डिग्री ट्री के लिए? सर, क्योंकि हर नोड के साथ दो लिंक्स आ रहे हैं। हर नोड के साथ मैक्सिमम का केस 3 का है, बीच के जो नोड है उनमें 3 नेबर्स हैं, एक पेरेंट और जी 2 सर। ये। कोई भी नोड के जब आपके बीच में आप हैं तो उसकी कनेक्टिविटी किसी भी नोड की आपकी 3 है, ठीक है? तो डिग्री इज 3, एक ऊपर और 2 नीचे, ये मैक्सिमम का केस है। रूट के कुछ कम है, रूट का ऊपर नहीं है, लीफ के भी कम है, लीफ का नीचे नहीं है, मगर जो दरमियान के सारे नोड्स हैं उनका 3 है, तो हम तो मैक्सिमम वाला केस लेते हैं, इसलिए हमने डिग्री 3 ले ली। ओके, अब रह गया लिंक कॉस्ट। लिंक कॉस्ट बताइए। लिंक कॉस्ट का इसमें आपको कोई रेगुलर पैटर्न देखना पड़ेगा कि मैं कैसे लिंक गिनूं कि मेरा काम आसान हो जाए। इस केस में वो जनरल फॉर्मूले की निस्बत आपको कोई बिहेवियर देख के हाँ लिंक कॉस्ट देखना आसान है। और वो क्या है वो बताएं। वो बिहेवियर ये है कि अगर आप ये कहो कि एवरी नोड हैज अ पेरेंट, एवरी नोड का एक पेरेंट लिंक है, हर नोड का एक पेरेंट लिंक एक्सेप्ट रूट नोड। आप लीफ से शुरू कर दो, इसका ये पेरेंट नोड आपने गिन लिया 1 2, फिर इसका 3 4, फिर इस तरह इसका पेरेंट नोड गिनते गए, फिर इसका हर एक का एक लिंक, हर एक नोड के साथ एक पेरेंट लिंक है बस, एक्सेप्ट रूट। तो अगर आपके टोटल नोड्स p हैं जो हमने कहा है, तो p माइनस 1 नोड के साथ एक लिंक काउंट हो जाएगा, तो सिवाय रूट के, तो टोटल p माइनस 1 लिंक्स, लिंक कॉस्ट p माइनस 1 अगर p लिंक्स है हमारे, ठीक है? जी सर। चलो, तो ये हो गया हमारे ट्री का। ट्री मैंने जैसे कहा था कि वाई इट इज ऑफ अवर इंटरेस्ट, वो ये है, एक तो कोई भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर जिसमें ऊपर का ट्रैफिक बढ़ता हो और नीचे का ट्रैफिक कम हो, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें ट्री लाइक बिहेवियर ही इंप्लीमेंट होता है कनेक्टिविटी का। तो यही चीज जो डेटा सेंटर्स आजकल बनते हैं,
जो आजकल के डेटा सेंटर्स बनते हैं उनमें भी यही जो स्विचिंग अरेंजमेंट्स है वो इसी तरह से काम करती है कि आपके सबसे नीचे के लेवल पर लेट से ये सर्वर्स या आपके नोड्स हैं जो प्रोसेस करेंगे, मे बी वेब सर्वर्स का नेटवर्क है, नेट डेटा सेंटर है जिसपे बहुत से लोग आएंगे और वो एक्सेस करेंगे इस फैसिलिटी को। तो इन सर्वर्स के ऊपर आपने यहाँ इसको मैंने पहले शुरू में भी इस क्लास के दिखाया, टॉप ऑफ द रैक स्विच होगा जो इन तमाम ब्लॉक ऑफ सर्वर्स को जिनके ऊपर ये है टॉप ऑफ द रैक थी, ये फर्स्ट लेवल के स्विच होंगे, इनकी बैंडविड्थ एक लेवल की होगी। फिर इन इससे नेक्स्ट लेवल लेयर 1 स्विचेस, लेयर 2 स्विचेस, लेयर 3, यानी फिर हायर लेयर पर भी स्विचेस ज्यादा बैंडविड्थ के होते हैं क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा कि इस स्विच ने सपोज इस एग्जांपल में इन 2 नोड्स के ट्रैफिक को लेना है और आगे भेजना है, लेकिन इस स्विच ने 2 इधर से आएंगे 2 इधर से आएंगे और उनको 4 को आगे कनेक्ट करना है, और इस स्विच ने 4 फ्लो इधर से आ रहे हैं और 4 फ्लो इधर से आ रहे हैं, 8 को हैंडल करना है। तो ऊपर इसकी वो बैंडविड्थ ऑफ कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो ऐसे ट्री को, ये स्ट्रक्चर तो ट्री लाइक ही है हायरार्किकल, मगर इसको हम फैट ट्री कहते हैं क्योंकि ऊपर से फैट होता जाता है। और जो तमाम आजकल के मॉडर्न डेटा सेंटर्स हैं जिसमें जैसे वेब का या किसी भी चीज का, उनमें जो कनेक्टिविटी है वो इस फैट ट्री वाली होती है। तो इसलिए ट्री और उसके फ्लो और उसकी बैंडविड्थ और ये हमारे इंटरेस्ट में है और हमने इस वजह से देखा। पॉपुलर टोपोलॉजी फॉर मॉडर्न टाइम्स डेटा सेंटर, फैट ट्री। तो अब हमने ये देख लिए 2D रेक्टेंगुलर को भी देख लिया और हमने जो है ट्री को भी देख लिया। ये ट्री वाला नीचे लिख दिया। एक यहाँ पर मिसिंग अभी है जिसको मैं कहूँगा कि जी आप एक्सटेंड करो। हमने ये 2D के अगर कह दिए हैं तो 3D में इस बात को कैसे एक्सटेंड करोगे? और एक्सटेंड करने में हमने देखा ये जो सारे हमने अभी सीखे हैं उसमें जो वेरिएशंस हैं वो 2 तरह की थी। एक, जब आप 3D पे जाओगे या और पे जाओगे तो 2 बातें हमें ख्याल रखना पड़ेगी। एक जो अभी हमने यहाँ देखी, ये स्क्वायर वाले थे मैश और टॉरस, और ये रेक्टेंगुलर वाले थे। तो स्क्वायर में हर डायमेंशन एक जैसी होती है, तो ये स्क्वायर वालों का मतलब है कि ये सिमेट्रिकल, हर डायमेंशन में एक जैसी मेजरमेंट, ये सिमेट्रिकल, ख्वाह वो 2 का हो या 3 का हो या 4 का हो वो फर्क नहीं पड़ता, मगर तमाम डायमेंशन एक जैसी। जबकि बाद में हमने रेक्टेंगुलर को जो देखा इसमें हर डायमेंशन एक जैसी नहीं थी। तो जो ऐसा केस होता है इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल। तो एक तो हमें जब भी कभी ये देने पड़ेंगे पैरामीटर्स किसी चीज के जनरल, तो हमें ये देखना पड़ेगा जब मैश वाले केसेस हैं जिसमें कई डायमेंशन होती हैं, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन बढ़ सकती हैं। तो एक तो हमें देखना होगा क्या सारी डायमेंशन बराबर है, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, या हम कहेंगे नहीं कुछ डायमेंशन अनइक्वल है तो हम कहेंगे एसिमेट्रिकल। तो एक तो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और दूसरा जो हम पहले देखते रहे हैं कि क्या एंड पर रैप हुआ हुआ है कि नहीं, नॉर्मल मैश विदाउट रैप है या एंड पे रैपिंग है, ये टॉरस। इसी तरह ये विदाउट रैप, विद रैप, 2 डायमेंशन में। इसी तरह अगर 3 डायमेंशन मैश का मैं आपको प्रॉब्लम दूं तो आपको पहले प्रॉब्लम में ये पता हो कि क्या ये सिमेट्रिकल 3 डायमेंशनल मैश है या एसिमेट्रिकल है, एक तो ये चॉइस, और फिर दूसरा ये चॉइस कि हर कैटेगरी में सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल, हर कैटेगरी में मुमकिन है कि वो विद रैप अराउंड हो या विदाउट रैप अराउंड हो। तो ये सारी कॉम्बिनेशन से जब आप क्लियर हैं तब आप ये वाली बातें सही लिख सकते हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि अच्छा जी मैंने आपको 2D मैश के सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल सिखा दिए, विद रैप अराउंड विदाउट रैप अराउंड बता दिए, अब अगर ये 3D मैश हो तो यही सारी बातें आप उसके बारे में बताएं, तो यू शुड बी एबल टू टेल नाउ। ओके, तो वो आपने करना है। अच्छा, अब ये करने के बाद हमारी जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो है हाइपर क्यूब।
हाइपर क्यूब एक और एडिशनल बात हमें सिखाना चाहेगी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, बहुत दिलचस्प, और ये वो स्ट्रक्चर है जो उस कॉन्सेप्ट को भी आपके क्लियर करेगी। आप हमेशा से सुनते चले आए होंगे कि यार चीज़ें खाली 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन नहीं होती, वो मल्टीपल 4 डायमेंशन भी हो सकती हैं, 5 डायमेंशन भी हो सकती है, 6 डायमेंशन में। और ये हम सुनते आए हैं और बिलीव भी करते आए हैं, और सही बात भी है, लेकिन हमने उसको कभी बड़ी ड्रॉ करके और स्ट्रक्चरली इस बात को समझना हमें मुश्किल लगता है हमेशा। जब हम 3 डायमेंशन से आगे जाते हैं तो हम सोचते हैं यार 4 डायमेंशन से क्या मुराद। हाइपर क्यूब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके इस कॉन्सेप्ट को बड़ा निटी ग्रिटी तरीके से एक्सप्लेन करेगा, जनरलाइज करेगा, और फिर आप देखोगे कि आप खुद 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन हाइपर क्यूब बनाओगे खुद बाय ए रेगुलर पॉलिसी। तो उससे बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है ये। पैरेलल कनेक्टिविटी में इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके ये वाले पैरामीटर्स जो 3 हमने सीखे हैं वो बहुत जबरदस्त है। ये बड़ा जबरदस्त बैलेंस है इन तीनों पैरामीटर्स में जिसको हम कंपेयर करते थे। तो पहले हम हाइपर क्यूब की स्ट्रक्चर के बनाने के असूल को सीखना चाहेंगे। यहां पर वो असूल है। अच्छा, मैं आपको शुरू से ही यहाँ ये चीजें बनी हुई हैं, ये वर्टिकल डायमेंशन बनी है, मैं आपको शुरू से ही यही डायग्राम हॉरिजेंटल में बनाऊंगा, क्योंकि हम आदी हैं पास्ट में उस तरह से चीजों को बनाने के। तो मैं आपको जो पुराना हमारा कॉन्सेप्ट है उसी से लिंक रखना चाहते हैं, क्योंकि हम अक्सर एक्स वगैरह को हॉरिजेंटली सबसे पहले लेने के आदी हैं। तो मैं इस ही डायग्राम को शुरू से ही उस तरीके से बनाना चाहूंगा जो आप ज्यादा फेमिलियर हो। तो लेट्स गेट टू दैट। हाइपर क्यूब बनाने के लिए तरीका यह है कि आप पहले तो डायमेंशन का मामला तय करो। हम कह रहे हैं ना 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन, हमें पास में आदत है, जो अब हमें आदत है उसी आदत को हम कायम रखेंगे। एक्स एक डायमेंशन अगर हो तो हमारा इधर एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजेंटल को हम एक्स डायमेंशन कहने के आदी हैं या पहली डायमेंशन कहने के आदी हैं। दूसरी डायमेंशन हम वर्टिकल को कहते हैं। अगर वर्टिकल में जाएं तो डायमेंशन वाई डायमेंशन, ये दूसरी डायमेंशन है। फिर अगर हम डेप्थ में चले जाएं तो तीसरी डायमेंशन जेड डायमेंशन। हम क्योंकि इस तरह से डायमेंशंस को कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहने के आदी हैं, तो मैं इस डायग्राम को ड्रा करने में भी यही प्रैक्टिस रखना चाहूंगा। अगरचे वो हाइपर क्यूब वाले तो किधर से भी शुरू कर लेते हैं, मगर हम इसी को स्टिक करेंगे। अगेन क्योंकि एक्स हमारी सबसे पहली डायमेंशन होती है जो हॉरिजेंटल है, और अगर हम इसको नंबर देना चाहे डायमेंशन को, तो हम इसको डायमेंशन नंबर 0 दे सकते हैं। डायमेंशन 0, डायमेंशन नंबर 0 सबसे पहली डायमेंशन। दूसरी डायमेंशन y, इसको अगर मैंने डायमेंशन नंबर देना हो तो मैं कहूंगा डायमेंशन नंबर 1, d1। तीसरे डायमेंशन को मैंने अगर डायमेंशन नंबर देना हो तो मैं इसको कहूंगा d2, d0, d1, y is d1। आप समझ रहे हैं? जिस तरह x और y और z हम डायमेंशन देते हैं, इसी तरतीब में अगर हमने नंबर में इन डायमेंशन को नंबर में कहना हो तो हम d0, d1, d2 कहेंगे। ओके, ठीक है। हाइपर क्यूब के बनाने का खूबसूरत मामला यह है कि इसका अभी जैसे हमने ट्री का नहीं देखा था कि हर लेवल पर नंबर ऑफ नोड्स बाइनरी ट्री में देवर 2 to the power लेवल। ठीक, हाइपर क्यूब का भी इसी तरह ग्रोथ होती है। इट कीप्स डबलिंग इन ईच आफ्टर ईच डायमेंशन, यानी जो भी उसका डायमेंशन नंबर है उतने ही उसमें नोड्स हैं। अब हम देखते कैसे। सबसे पहला हाइपर क्यूब क्या होगा? 0 डायमेंशन हाइपर क्यूब, 0 डायमेंशंस का हाइपर क्यूब। सबसे हम कहेंगे 0 डायमेंशन हाइपर क्यूब, 0 डायमेंशन का हाइपर क्यूब। इसके नोड्स की तादाद क्या होगी? 2 to the power 0।
जीरो डायमेंशन हाइपर क्यूब के नंबर ऑफ नोड्स 2 टू द पावर 0 होंगे, जिसका मतलब 1। तो एक जीरो डायमेंशन हाइपर क्यूब ये है, एक नोड, दैट्स इट। ये जीरो डायमेंशन हाइपर क्यूब बना दिया। हम डायमेंशन को जनरलाइज करना सीख रहे हैं। जीरो डायमेंशन हाइपर क्यूब ये, इसको अगर लेबल देना हो बाइनरी में तो हम जीरो लेबल दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं। ओके, लेबल 0। ये कोई अभी आपको अभी दोबारा से अभी आपको थोड़ा सा अगले के बाद ये बात ज्यादा समझ आएगी। अब मैं कह रहा हूं मैं वन डायमेंशनल हाइपर क्यूब बना। असल में वन डायमेंशन से आप चीजों को हम समझना शुरू करते हैं। कोई भी वन डायमेंशनल चीज, अरे, लीनियर अरे, एक्स, एक चीज सिर्फ एक्स में है तो उसको हम वन डायमेंशनल चीज कहते हैं। हम असल में वन डायमेंशन को समझते हैं तो वो आपको फिर ज्यादा समझ आएगी। वन डायमेंशनल हाइपर क्यूब आपने बनाना है, एक डायमेंशन का हाइपर क्यूब। इसके नंबर ऑफ नोड्स की तादाद जैसे ट्री में था 2 टू द पावर 1 होगी, नंबर ऑफ नोड्स विच इज 2। तो वन डायमेंशनल हाइपर क्यूब 2 नोड्स का होगा। ये एक नोड का था, ये 2 नोड्स का होगा। किस तरह? ऐसे ही एक ये नोड और ये नोड, ये दो नोड्स हमने बनाए और इनके दरमियान एक लिंक लगा दिया और इसको इसका नाम 0, लेबल वाइज हमने इस पे लेबल 0 डाल दिया, बाइनरी लेबल, और इस पे 1 डाल दिया। और ये हमारी डायमेंशन है, एक डायमेंशन x। ये x भी थी, ये x एक्सिस। देखो x एक्सिस में ये दो नोड्स हैं, ये x एक्सिस में है। इसी का नाम हमने रखा हुआ है, इस डायमेंशन को हम d0 भी कहते हैं। ये d0 की डायमेंशन में सबसे ये कम वाली डायमेंशन हमारी d0 की डायमेंशन में x में ये दो नोड्स हैं। ओके, ये हमारा वन डायमेंशन हाइपर क्यूब। अभी इसी को बात करें, इसको 2 डायमेंशन हाइपर क्यूब बनाना है। वन डायमेंशन को 2 डायमेंशन हाइपर क्यूब आपने बनाना है, 2 डायमेंशन हाइपर क्यूब। इसके नंबर ऑफ नोड्स की तादाद 2⁻² होगी और विच इज 4। और ये कैसे ग्रो कैसे करते हैं? अब ग्रो करने का रेगुलर तरीका, जो भी कुछ वन डायमेंशन हाइपर क्यूब में है आप उसको एज इट इज ड्रॉ करें। अब 2 डायमेंशन हाइपर क्यूब बनाने का तरीका कि जो भी वन डायमेंशन का हाइपर क्यूब है आप उसको बिल्कुल वैसे ही कॉपी कर दें। यहां लिखे इन्हें, ये जुड़ा हुआ था इस तरह और ये इसकी डायमेंशन d0 में था। ओके, और ये यहां पर इसका लेबल 0 था और यहां इसका लेबल 1 था। ये हमारा जो एक हमने बनाया था वन डायमेंशन हाइपर क्यूब, इसको एज इट इज कॉपी कर दें, पहला ये है, और इसे रिपीट कर दें। यही चीज पहले ये वन डायमेंशन हाइपर क्यूब जो बना हुआ था इसी को आप डुप्लीकेट कर दें, यानी ये वन डायमेंशन था, ये भी वन डायमेंशन, ये ठीक है। तो ये वन डायमेंशन हाइपर क्यूब था, इसे आपने बनाया, वही लेबल्स दिए, और इसकी एक कॉपी बना दी, वही लेबल्स दिए। जब आप कॉपी बना लेते हैं फिर इनके रिस्पेक्टिव नोड्स को, जिनके लेबल एक जैसे हैं, उन्हें ज्वाइन कर देते हैं। हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे, इन्हें ज्वाइन कर देंगे। जो पहला वाला बना हुआ था उसके साथ यहां पे जीरोस लिखेंगे, इधर यहां नेक्स्ट बिट में हर एक के साथ 0 लिख देंगे। जो नया वाला बनाया है उसमें हर एक के साथ 1 लिख देंगे। अब ये 2 डायमेंशन हाइपरक्यूब बन गया है और उसके लेबल्स भी हैं, और उसकी ये वाली डायमेंशन, ये हॉरिजॉन्टल वाली डायमेंशन जो थी वो d0 थी ये, और जो वर्टिकल वाली अब दूसरी डायमेंशन ये आई है, अब जो ये d1 है, ये d1 है, y x एंड y। तो d0 था, अब d1 डायमेंशन, ये डायमेंशन, इसकी ये डायमेंशन d0 में है और इसकी ये डायमेंशन d1 में, ये x में है, ये y में है। अब इसको और ज्यादा, अब मैं कहूं कि इसी असूल से 2 डायमेंशन हाइपर क्यूब को लेके 3 डायमेंशन हाइपर क्यूब बनाओ। हम इसी असूल को इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे ऑलराइट, मैं ये करता हूं कि मैं ये पहले यही 2 डायमेंशन हाइपर क्यूब बनाऊंगा। पहले तो मैं इसी को एज इट इज कॉपी करूंगा, मैं इसको विदाउट चेंज इस पूरे को ऐसे ही बना लूं। बना लिया। अच्छा, ये
ये और यही लेबल्स डाल दिए जो यहां थे 0 0 0 1 1 1 1 0। तो मैंने अगर 2 डायमेंशन हाइपर क्यूब को 3 डायमेंशन हाइपर क्यूब बनाना है, पहले मैंने ये 2 डायमेंशन हाइपर क्यूब को ड्रॉ किया और फिर इसी की एक और कॉपी एज इट इज बनाई। लेट से यहां मैंने बना ली ये एक कॉपी, इसके पीछे इस जगह मैंने लेट से बना ली, ये एक और 2 डायमेंशन हाइपर क्यूब यहां बना लिया। ये ऐसे एक और बना लिया। यही लेबल्स उस पर डाले, ये थे 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0। बिल्कुल इसी की एक और मैंने कॉपी बनाई। अब इनके एक जैसे जो थे 0 0 को 0 0 से जोड़ दिया, लेट से मैं 0 1 को 0 1 से जोड़ दिया, 1 1 को 1 1 से जोड़ दिया और 1 0 को 1 0 से जोड़ दिया। ये 3 डायमेंशन हाइपर क्यूब बन गया। इसमें जो पहली वाली चीज थी उन सब के साथ यहां मैंने 0 डाला। लेट मी यूज अनदर कलर। ये मैं कौन सा करूं, ये ओके। ये जो सारा फ्रंट वाला था, इस सारे के साथ मैंने थर्ड बिट को 0 बना दिया, 0 0 0। और इसी तरह की चीज जो पीछे बनाई थी उन सब के साथ थर्ड बिट 1 बना दी, 1 1 1। अब मैंने ये 2 डायमेंशन हाइपर क्यूब को 3 ये थर्ड डायमेंशन आ गई। अब ये तीसरी डायमेंशन इसमें आ गई। देखो इस नोट के साथ ये x है हॉरिजॉन्टल, ये y है और ये z है। हर नोट अब ये 3 डायमेंशन का बन गया। मैं अगर यहां बाहर एक्सिस बनाऊं तो मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस है d0, वर्टिकल एक्सिस इसमें y एक्सिस है जो d1 और डेप्थ में मेरा जो एक्सिस है d2, एक्स वाई जेड। ये मेरे सारे हॉरिजेंटल वाले जो हैं, सारे हॉरिजेंटल दे आर d0 या x एक्सिस तमाम। सारे वर्टिकल आर y एक्सिस और d1 तमाम डेप्थ वाले जो हैं ये थर्ड डायमेंशन में है, z एक्सिस में है कनेक्टेड। और ये तो हम देख रहे हैं कि अब आप देखोगे कि हाइपर क्यूब ऑफ हायर डायमेंशन बनाने का तरीका, यहां पर आप ओरिजिनल को लेते हो और उसको 2 दफा बना के कनेक्ट कर देते हो। ये 0 से यहां 2 कनेक्ट हो गए। फिर ये इधर से 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में गए तो ये 1 डायमेंशन वाले 2 बनाए और उन्हें कनेक्ट किया। 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में आए तो ये 2 डायमेंशन वाले 2 बनाए और उन्हें कनेक्ट किया। और हर दफा जब आप कनेक्ट कर रहे होते हो तो अगली डायमेंशन आ रही होती है। ये 2 डायमेंशन वाले में सेकंड डायमेंशन आई है, 3 डायमेंशन वाले में थर्ड डायमेंशन आ गई। 3 डायमेंशन हाइपर क्यूब का साइज इज 2⁻³ विच इज 8 और इसमें थर्ड डायमेंशन आ गई। तो हर डायमेंशन ऐड करने में अगर वो अब आपका काम क्या है, मैं आपको काम दे रहा हूं, यहां से आप बताओ। ये 3 डायमेंशन हाइपर क्यूब है। नाउ यू मेक योरसेल्फ ए 4 डायमेंशन हाइपर क्यूब नेक्स्ट टाइम विद ऑल द लेबल्स। इसी असूल पर डुप्लीकेट आप करेंगे, यही चीज 2 दफा बनाएंगे, 1 to 1 कनेक्ट करेंगे। पहले ब्लॉक के साथ एक 0 बिट ऐड हो जाएगी 4th बिट में और दूसरे ब्लॉक के साथ 1। आप विद लेबल्स 4 डायमेंशन हाइपर क्यूब बना सकते हैं। आप बनाइए, नेक्स्ट टाइम आप मुझे दिखाएंगे और अगर नहीं बनाया तो मेरे से पूछेंगे कि क्या मसला है। ठीक है? So it's such a regular structure. You do keep recursively doubling it. साइज भी डबल होता जाता है, हर दफा एक डायमेंशन ऐड होती जाती है और लेबल भी उसके खुद ब खुद तय हो जाते हैं कि किस नोट का लेबल क्या होगा। जाहिर है ये 8 नोट का था तो इसका लेबल 3 बिट के हैं, ये 4 नोट का था तो इसके लेबल 2 बिट्स के हैं, ये सिर्फ 2 नोट्स का था तो इसके लेबल 1 बिट के हैं। तो इस तरह आपकी ये बड़ी रेगुलर स्ट्रक्चर है जो हमने सीखी है। इसको इसी को अगली दफा कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है सर। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।